دینے کی صلاحیت ان کی شاعری میں ملتی ہے۔ جناب معراج کے بعد ہمارے دو شعراء اور محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ ہماری ان شاعرات میں ہیں جنہیں پوری دنیا میں بے پناہ احترام اور عزت کے ساتھ سنا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ زندگی کی سچائیوں کو اور اپنی ذاتی زندگی کی سچائیوں کو خاص طریقے سے شاعری کا موضوع بناتی ہیں۔ میں شبینہ صاحبہ سے اس وقت التماس کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور حالات حاضرہ پر جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے اسے ضرور پیش کریں، ذاتی زندگی کے مسائل و مصائب کی بھی ترجمانی کریں اور ہندوستان اور ہندوستان کے باہر کی دنیا کے جو مسائل ہیں ان تجربات کو بھی انہوں نے غزلوں و گیتوں میں ڈھالا ہے۔ محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ۔ بھئی ایک اعلان ہے، 15 مارچ کو موضع دھنی پور میں ایک مشاعرہ ہے، یہ اعلان اختر اعظمی صاحب نے کیا ہے۔ چلیے ہاں شبینہ صاحبہ۔ معزز سامعین حضرات، اس سے قبل بھی میری حاضری آپ سب کے بیچ ہوئی، لیکن اتنا خاموش مشاعرہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ آپ حضرات سن تو رہے ہیں لیکن اتنی خاموشی سے سن رہے ہیں، اس لیے میں تھوڑا ڈر بھی رہی ہوں۔ چاہتی یہ ہوں کہ آپ جس ماحول میں اور جن دعاؤں کے ساتھ مجھے سنتے ہیں، اگر آپ نے اسی طرح سے مجھے نوازا تو میں کچھ شعر آپ کو سنا سکوں گی۔ ایک غزل کے کچھ اشعار، کیونکہ آپ بہت دیر سے آوازیں آ رہی ہیں نیا نیا، تو چاہتی ہوں کہ کچھ نیا آپ سب کی خدمت میں حاضر کروں، لیکن اس کے لیے آپ تھوڑا سا ماحول دیں، میرے لیے نہ صحیح کم سے کم جوہر صاحب کے لیے تو تھوڑا سا ایک ماحول بنا لیں۔ میں آپ سب کی دعا چاہتی ہوں، میری شاعری سے جڑیں اور مجھے اپنی دعا سے نوازیں۔ مجھے لگنا چاہیے کہ میں بھدیٹھی میں اور آپ سب کے بیچ میں شعر پڑھ رہی ہوں اور آپ سب مجھے اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ غزل کا مطلع حاضر کرتی ہوں، جہاں جہاں تک حضرات تشریف رکھتے ہیں دعا چاہتی ہوں، صدر محترم کی اجازت چاہتی ہوں، حاضر کرتی ہوں۔ سنیں۔ تو کسی راستے کا مسافر رہے، تو کسی راستے کا مسافر رہے، تیری ایک ایک ٹھوکر اٹھا لاؤں گی۔ تو کسی راستے کا مسافر رہے، تو کسی راستے کا مسافر رہے، تیری ایک ایک ٹھوکر اٹھا لاؤں گی۔ اپنی بے چین پلکوں سے چن چن کے میں، اپنی بے چین پلکوں سے چن چن کے میں، تیرے راستے کے پتھر اٹھا لاؤں گی۔ اپنی بے چین پلکوں سے چن چن کے میں، تیرے راستے کے پتھر اٹھا لاؤں گی۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ تھوڑا سا تو جاگے، تھوڑا سا اور میرا حوصلہ بڑھائیں، اور میں یہ شعر خاص طور سے آپ سب کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں۔ دعا چاہتی ہوں آپ سب کی۔ بہت اچھا لگا کہ آپ نے تھوڑا سا ماحول دیا مجھے، لیکن جس ماحول میں سنتے ہیں تھوڑا سا اسی ماحول میں آ جائیں تاکہ کچھ میں اسی موڈ میں پڑھ سکوں۔ شعر پڑھتی ہوں کہ میں ورق پیار کا موڑ سکتی نہیں، زندگی میں تجھے چھوڑ سکتی نہیں۔ میں ورق پیار کا موڑ سکتی نہیں، زندگی میں تجھے چھوڑ سکتی نہیں۔ تو اگر میرے گھر تک نہیں آئے گا، تو اگر میرے گھر تک نہیں آئے گا، میں تیرے پاس ہی گھر اٹھا لاؤں گی۔ تو اگر میرے گھر تک نہیں آئے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں پڑھتی ہوں کہ میں ورق پیار کا موڑ سکتی نہیں، زندگی میں تجھے چھوڑ سکتی نہیں، زندگی میں تجھے چھوڑ سکتی نہیں۔ تو اگر میرے گھر تک نہیں آئے گا، میں تیرے پاس ہی گھر اٹھا لاؤں گی۔ تو اگر میرے گھر
घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। भाईजान मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप थोड़ा सा बैठ के सुने, तो लगेगा कि आप मुशायरे में बैठे हैं। इस तरह से आप लेट के शेर सुन रहे हैं, मुशायरे की तहजीब नहीं है ये। आप बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं, आप सबके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। शेर आप सबकी खिदमत में हाजिर करती हूँ। बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं, शेर हाजिर है, सुने। तो अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। वाह 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 वाह। कि मेरे हर ख्वाब की तू ही ताबीर है, तू ही मेरे ख्यालों की तस्वीर है। मेरे हर ख्वाब की तू ही ताबीर है, तू ही मेरे ख्यालों की तस्वीर है। तेरी आंखों से देखूंगी मैं जिंदगी, तेरी आंखों से देखूंगी मैं जिंदगी, तेरी पलकों से मंजर उठा लाऊंगी। तेरी आंखों से देखूंगी मैं जिंदगी, तेरी पलकों से मंजर उठा लाऊंगी। तो किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगी। और ये शेर आप सबकी खिदमत में हाजिर है कि आंसुओं का ये मौसम चला जाएगा, मेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। आंसुओं का ये मौसम चला जाएगा, मेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। मुझको दिल की जमीन से तुम आवाज दो, मुझको दिल की जमीन से तुम आवाज दो, आसमां अपने सर पर उठा लाऊंगी। वाह 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 वाह। जमीन से मैं हाजिर करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत अच्छी तरह आप सुन रहे हैं। मैं हाजिर करती हूँ कि आंसुओं का ये मौसम चला जाएगा, मेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा, मेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। मुझको दिल की जमीन से तुम आवाज दो, मुझको दिल की जमीन से तुम आवाज दो, आसमां अपने सर पर उठा लाऊंगी। मुझको दिल की जमीन से तुम आवाज दो, आसमां अपने सर पर उठा लाऊंगी। और गजल का ये शेर जहां जहां तक आप हजरत तशरीफ रखते हैं, आप सभी की दुआ चाहती हूँ, हाजिर करती हूँ। सुने कि ये जमाना है सहरा सिफत हम नशी। डाइस पर बैठे हुए सभी शोरा कराम और मेहमान खुसूसी की और आप सभी की खुसूसी तवज्जो चाहिए। सुने कि ये जमाना है सहरा सिफत हम नशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। ये जमाना है सहरा सिफत हम नशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। देख तो मुझसे कह कर भी एक बार तू, देख तो मुझसे कह कर भी एक बार तू, तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगी। देख तो मुझसे कह कर भी एक बार तू, ये जमाना है सहरा सिफत हम नशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। देख तो मुझसे कह कर भी एक बार तू, देख तो मुझसे कह कर भी एक बार तू, तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगी। देख तो मुझसे कह कर भी एक बार तू, तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगी। तू किसी रास्ते का, और ये शेर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है,
आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं हाजिर करती हूँ आप सबकी खिदमत में और आप सभी की दुआएं चाहती हूँ बतौर खास। सुने कि तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम, मैं अयादत को रस्मन नहीं आई हूँ। तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम, मैं अयादत को रस्मन नहीं आई हूँ। मेरे बीमार तेरी दवा के लिए, मेरे बीमार तेरी दवा के लिए अपना एक एक जेवर उठा ला। अरे वाह, अरे सबीना, सबीना आइए 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 कुछ जी हाँ आ रहे हैं। आप इत्मीनान रखिए, आप जिस खुलूस से समाअत फरमा रहे हैं यकीनन वो उसका जवाब खुलूसी से देंगी और एक कलाम और पेश करेंगी। जी नया, मैं ये भी तो नया ही सुना रही थी और बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने वाकई मुझे बहुत अच्छा माहौल दिया। जी मैं चाहती हूँ कि एक गीत आपकी खिदमत में हाजिर कर दूँ, बिल्कुल नया गीत आप सबके। जी जहाँ तक हजरत तशरीफ रखते हैं, गुजारिश है कि इसी माहौल में मुझे अपनी दुआओं से नवाजिएगा। एक गीत हाजिर है, कुछ हमारे नौजवान भाई का हुक्म है, एक बिल्कुल नया गीत आप सब मुझे हुक्म दे रहे हैं, तामिल हुक्म में नया गीत हाजिर है, सुनिएगा। तेरी चाहत की कसम, तेरी चाहत की कसम, तेरी चाहत की कसम, तेरी चाहत की कसम, मेरे दिल ने तुझे चाहा है मोहब्बत की कसम। तेरी चाह, देखिए कैसे कह रहे हैं कि आप पुराना, क्योंकि मैं पहली बार तो इसको पढ़ रही हूँ और आप कह रहे हैं पुराना। तेरी चाहत की, अब नए गीत को अगर आप पुराना कहने लगे तो मैं बिल्कुल पुराना सुनाऊंगी जो आपने बार बार सुना होगा। तेरी चाहत की कसम, तेरी चाहत की कसम, तेरी चाहत की कसम। अब ये अलग बात है कि मेरी धुन अगर और शायर और शायरात पढ़ने लगे तो मेरी मैं आप शेर और गीत सुने, धुन पे ना जाएं। कि तेरी चाहत की कसम, तेरी चाहत की कसम, मेरे दिल ने तुझे चाहा है मोहब्बत की कसम। तेरी चाहत की कसम, तेरी चाहत की कसम, तेरी चाहत की कसम, तेरी चाहत की कसम। बहुत बहुत शुक्रिया। बन हाजिर करती हूँ और आप सबके खुसूसी तवज्जो बन पर चाहती हूँ, दुआ चाहती हूँ, हाजिर करती हूँ। सुने कि जिंदगी तू है, हर खुशी तू है, जिंदगी तू है, हर खुशी तू है, मेरी आँखों की रोशनी तू है, मेरी आँखों की रोशनी तू है। सभी रिश्तों को आज तोड़ाई, मैं तेरी खातिर सबको छोड़ाई, कोई तुझसा नहीं दुनिया में क़यामत की कसम। तेरी चाहत की कसम, तेरी चाह, जहाँ पर आपको दाद देना चाहिए वहाँ आप खामोश हो जाते हैं। कि तेरी चाहत की कसम, तेरी, जहाँ पर खत्म हो बन वहाँ पर आपको दाद देनी है, ये तो आप सभी जानते हैं। कि तेरी चाहत की कसम, तेरी चाहत की कसम, तेरी चाहत की कसम, तेरी चाहत की कसम, मेरे दिल ने तुझे चाहा है मोहब्बत की कसम। तेरी चाहत की कसम, तेरी चाहत की कसम। वक्त बहुत कम है, बन हाजिर करती हूँ और दुआ चाहती हूँ। आप सबकी बहुत अच्छा सुन रहे हैं इसलिए मैं पढ़ती हूँ। कि तेरे हर गम को दूर कर दूंगी, तेरे हर गम को दूर कर दूंगी, तेरे जीवन में प्यार भर दूंगी, तेरे जीवन में प्यार भर दूंगी। अपनी उलझन को आज सुलझा ले, मैं मोहब्बत हूँ मुझे अपना ले, मैं तेरा साथ निभा दूंगी इबादत की कसम।
तेरी चाहत, जी इस तरह से कि तेरी चाहत की कसम, तेरी चाहत की कसम, तेरी चाहत की कसम, तेरी चाहत। और जहाँ जहाँ तक आप मैं हाजिर करती हूँ कि तेरे हर गम को दूर कर दूंगी, तेरे जीवन में प्यार भर दूंगी, अपनी उलझन को आज सुलझा ले, मैं मोहब्बत हो मुझे अपना ले, मैं तेरा साथ निभा दूंगी इबादत की कसम, तेरी चाहत की कसम, तेरी चाहत की कसम, तेरी चाहत की कसम, तेरी चाहत। नहीं बहुत अच्छे हजरात। देखिए, जिसके इंतजार में आप अब तक बैठे हैं, जौहर कानपुरी से अब मैं गुजारिश करूंगा आप बैठ जाइए। जनाब जौहर कानपुरी को सुनने के लिए आप बहुत बेचैन थे, और आप ही नहीं सारे हिंदुस्तान के लोग, सारी दुनिया के लोग जौहर साहब को सुनने के लिए बेचैन रहते हैं। अब आप नहीं है वो बाद में जो वक्त बचेगा वो शबीना साहब ही पढ़ेंगी, लेकिन जौहर साहब को आप सुन लीजिए ताकि पहला हाँ मैं वादा कर रहा हूं आप बैठ जाएं। जनाब जौहर के बाद फिर शबीना साहिबा पढ़ेंगी, आप मुतमईन रहिए। हाँ खड़े रहने दीजिए, मैं क्या ड्यूटी में उसको सुनना चाहते ना तो आप पढ़ो। भाई जो लोग जा रहे हैं वो जाते हुए सुने, जो बैठे हैं बैठे बैठे सुन लें। मेरे लिए ये बहुत अच्छा वक्त है कि आप हजरात जा रहे हैं, मेहनत कम पड़ेगी, और मैं चाहता भी यही था, क्योंकि सारी रात से बैठा बैठा ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें ज़्यादातर सब पुराने लोग हैं। ये बड़ा मसला होता है। देखिए हजरात,